हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्चिंग। सो सर्चिंग इज बेसिकली divided in two parts. First is target and second one is search space. ये सर्च स्पेस इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि बाइनरी सर्च के क्वेश्चन में अगर हमने सर्च स्पेस को फाइंड कर लिया, समझो कि वी हैव डन ऑलमोस्ट 50%. So target is what we have to search, what to search, and search space is where to search. What to search and where to search. So let's take an example. We have a newspaper, and in this newspaper, we have to find the word parliament. So when we are finding the word parliament in the newspaper, so newspaper is become our search space and parliament is our target. So we are finding parliament in the newspaper means we are finding target in the search space. So we have to find word by word in the newspaper. So the time complexity which it will take is O of n as we are finding linearly. So assume करते हैं कि instead of newspaper if we have dictionary, finding parliament in dictionary is easier. Why is easier? Because dictionary is sorted in alphabetical order. So how alphabetical order is helping us? Because अगर हमें पार्लियामेंट फाइंड करना है, सो हम लोग डायरेक्ट पी पे जाएंगे, पी वाले वर्ड्स पे। अब पी वाले वर्ड्स में हम ढूंढेंगे ए, देन ए वाले वर्ड्स एंड देन आर, और सिमिलरली फाइंड करते करते हमारे पास पार्लियामेंट मिल जाएगा. सो दिस इज द basic intuition of binary search. In next step, let's understand what is binary search. By an example. So in binary search, let's take an array and their indexes. So we are finding the target k, which is equals to 12. So if we go linearly, first we go to 3, then 6, then 9, and then 12. We find the 12. But the problem here is the time complexity is O of n, and we have to optimize the time complexity of searching. How we optimize? How it optimized? Let's take an example. Start index at S and an ending index at last index of the array. So mid is nothing but S plus E divided by 2. So starting index is our 0 and the ending index is our 9. So we are having the mid value as 4. So array of mid is being compared by the target value. So target value हमारी है 12 और array of mid जो है 14. So 14 is greater than 12. So 14 जब greater than 12 है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो array of 4 which is 14, this one. सो इसके जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में सारी वैल्यूज स्मॉलर हैं और राइट में सारी वैल्यूज लार्जर हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि जो एरे हमारे पास वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. सो जब वैल्यू हमारे पास 14 है और हमको फाइंड करना है 14 से स्मॉलर वैल्यू, तो क्या वो वैल्यू हमें कभी भी 14 के राइट में मिल सकती है? नहीं मिल सकती. सो इन सिंगल गो वी हैव डिस्कार्डेड दिस राइट हाफ ऑफ द मिड. मतलब जो एरे हमारे पास पहले n था जिसमें n एलिमेंट्स थे, वी हैव डिस्कार्डेड
n by 2. So we are having only n by 2 elements to research now. तो हमें जो अब 12 को ढूंढना है वो n में ना ढूंढ के n by 2 एलिमेंट्स को ढूंढना है. So in a single go, we have discarded almost half of the elements. This is the binary search. तो आगे चलते हैं. आगे जब चलते हैं हम लोग, so 14 is greater than 12. सो 14 के राइट में तो हो नहीं सकता, लेफ्ट में होगा बेसिकली. तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो इंडेक्स है ई, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे 12 ऊपर, विच इज नथिंग बट mid minus 1. So and is updated by mid minus 1, which is nothing but the index 3, and start is remains 0. So mid will become 0 plus 3 divided by 2, which is nothing but the 1. So the mid value here is now, mid value जो हमारी है यहाँ पे, अब mid value is here now becomes 1. This one. This is our mid value. So mid value को कंपेयर करेंगे फिर से सेम एरे ऑफ 1 which is equals to 6. So 6 जो है वो स्मॉलर है 12 से. So 12 के लेफ्ट वाला जो है, जो कि स्मॉलर वैल्यूज है, क्या वो कभी भी 12 कंटेन कर सकती है? क्योंकि जब 6 यहाँ पर है तो 6 के लेफ्ट में उससे स्मॉलर वैल्यूज है, तो क्या कभी 12 वहां मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा. So we will discard this left half of the mid, and our search space is now reduced to this only, 6, 9 and 12. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिड को लेकर आएंगे और मिड को अपडेट कर देंगे 9 पे, क्योंकि 6 तो है नहीं, इट इज ऑलरेडी बीन कंपेयर्ड. अब हमारे पास 9 जब हमने कर दिया मिड को, तो जो सर्च बचा विच इज 9 एंड 12. तो एस इज नथिंग बट मिड प्लस 1, and start is our now pointing at index 2, and is remains same. So mid will be updated by 2 plus 3 divided by 2, which is nothing but the 2 only. So here our mid is now becomes 9. जब अब कंपेयर करेंगे 9 को, तो 12 array of 2 which is 9. So 9 is greater than 12. सो फिर से इसके लेफ्ट हाफ वाले को हम इग्नोर करेंगे. अब इसके लेफ्ट हाफ में तो कुछ था ही नहीं, तो इग्नोर करने में कुछ है ही नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग को उठाएंगे, स्टार्ट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे मिड प्लस 1. मिड प्लस 1 इज नथिंग बट अवर ई ओनली. सो मिड प्लस 1 क्या हो जाएगा इस बार, 2 प्लस 1 इट इज 3, और एंड इज ऑलरेडी 3. Oh, so 3 plus 3 divided by 2 is nothing but 3 only. So 12 or array of 3 which is 12. So क्या 12 12 के इक्वल है? हाँ, 12 12 के इक्वल है, और यहाँ हमें हमारी वैल्यू मिल गई. So this is our answer. So हमें जो आंसर मिला है वो मिला है आंसर इंडेक्स इक्वल्स 3 पे. सो ये बेसिकली हमारा था बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्च स्पेस होता है, सर्च स्पेस जो कि था हमारा 0 से लेके 9 तक, उसको हम लोग रिड्यूस करते 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 एक सिंगल हाफ में हाफ कर देते हैं, और हमें जो आंसर मिल जाता है वो हमें आंसर लीनियर से बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है. और कितने में मिलता है, वी विल डिस्कस इन इन फ्यू मिनट्स. सो एक पॉइंट और जो यहाँ पे सीखने वाला है वो ये, कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं 12 की जगह 13 होता, हमारा जो 12 है वो होता ही नहीं, टारगेट हमारा था 12. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या करते हैं, क्या हमारा मिड स्टार्ट भी 3 था, एंड भी 3 था, तो स्टार्ट 3 एंड 3. अब ये जो 12 है, 12 विल नाउ लेस देन 13. तो जो 13 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी बड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे करके आते हैं, तो एंड को मिड माइनस 1 करते हैं. एंड को मिड माइनस 1 करते
तो हमारा ये हो जाता है 2 और 3। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे एस की वैल्यू बड़ी हो गई ई से। सो एस की वैल्यू जब बड़ी हो गई है ई से, एस हमारा यहाँ पर है अभी भी, तो ई जो वाला हमारा जो यहाँ पे आ गया। पर इसको तो हम पहले ही चेक करके आ चुके थे कि सेकंड इंडेक्स जो हमने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे ये था ही नहीं। सो क्या हमको वापसी जाने का कोई सेंस बनता है? नहीं। जब कोई सेंस नहीं बनता, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर रुक जाना है व्हेन एस इज ग्रेटर देन ई। इससे आगे हमको नहीं जाना है। इससे आगे हमको नहीं जाना है। सो हमने अभी तक जो भी सीखा है, लेट्स राइट डाउन इन दी वर्ड्स। सो सबसे पहला जो एल्गोरिथम हमारा कहता है, एल्गोरिथम हमारा कहता है, इफ mid is the answer, then return. If the answer is in the left, so go e is equal to plus 1. If the answer is in the right, go mid plus 1. So this is our algorithm जो हमने ड्रायन से सीखा. So let's code this in lead code. So let's do the coding part. So we will take two indexes, start will pointing at 0 index and end pointing at last index of the array. So we'll take a while loop. while loop में जो कंडीशन आएगी उसको डिस्कस करते हूँ, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिड. int मिड इज इक्वल टू एस प्लस ई डिवाइडेड बाय 2. अब ये मिड हमें कोई इशू नहीं देगा कैलकुलेशन वाइज, बट इशू क्या है यहाँ पे मिड में कि एस जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी हमारा इंटीजर है और एंडिंग इंडेक्स है वो भी हमारा इंटीजर है. सो एट एनी पॉइंट देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी जहाँ पे मिड जो है इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए. तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड विल यूज्ड एज एस प्लस ई माइनस एस डिवाइडेड बाय 2. अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, एस प्लस डिवाइडेड बाय 2. सो अब जो आगे जो हमें करना है, बाइनरी सर्च का जो हमने एल्गोरिथम यूज किया था, बेसिकली हमें उसको लेके आना है अपने कोड में. सो अगर हमें आंसर मिल जाता है मिड पे तो हमें टर्मिनेट कर देना है. अगर आंसर हमारा लेफ्ट में होता है तो ई इज इक्वल टू माइनस वन करना है. अगर आंसर हमारा राइट में होता है तो एस को मिड प्लस वन करना है. सो इफ nums of mid is equals to target, we will return mid. As if nums of mid is greater than target. ग्रेटर देन टारगेट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यू है वो हमारी बड़ी है और टारगेट की वैल्यू छोटी है. टारगेट की वैल्यू छोटी है मतलब कि आंसर हमारे लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो आंसर हमारे लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको कहाँ पे जाना है? जब आंसर हमारे लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वी विल डू ई इज इक्वल टू मिड माइनस वन. मीन एंडिंग इंडेक्स will be available as mid minus 1. So ending index will be available as mid minus 1 and start is mid plus 1. अब अगर हम इस लूप से बाहर आ गए और यहाँ से हमारी वैल्यू अगर रिटर्न नहीं हुई तो वो क्या शो करती है? वो शो करती है कि हमारा कि हमारी जो वैल्यू जिसको हम फाइंड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती नहीं है. तो जब एग्जिस्ट नहीं करती तो क्वेश्चन में बोला है कि हमको रिटर्न करना है माइनस वन. तो रिटर्न का माइनस करना है तो यहाँ पर सिंपली लिखते हो रिटर्न माइनस वन. जो लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है वो बचा है कि वाइल लूप में क्या कंडीशन आएगी. वाइल लूप की कंडीशन को डिस्कस करने के लिए पहले जो डिस्कस किया था वहां चलते हैं. ये जो डिस्कस किया था हमने ये कि एस इज ग्रेटर देन ई जब हो जाए तो हमें रुक जाना है. जब हमें रुक जाना है तो इसका मतलब हमें जो काम करना है वो कब करना है? जब तक एस इज लेस देन इक्वल टू ई है. जैसे ही बड़ा हुआ जब हमें रुक जाना है. सो जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स is less than equals to ending index, we will do the loop work
and if at ending point starting index is greater than ending index, we will come out of the loop. And if we don't have the value which is returned from the loop, so we will return -1, and answer is 1. So let's run this code. Uh, So this is right one. Let's sum the code. And we have it 100%. So जो लास्ट पार्ट बचा है कोड का, कोड हमारा हो गया ना, कोड का लास्ट बचा है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स डू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या था कि अगर देखिए तो फर्स्ट हाफ में हमारे पास थे n एलिमेंट्स, सेकंड हाफ में हुए हमारे पास n/2 एलिमेंट्स, देन n/4 एलिमेंट्स, देन n/8 एलिमेंट्स, अप टू टिल वी हैव द वन एलिमेंट. सो ऐसा अगर कभी भी हो रहा होता है कि n जो है हर बार डिवाइड होता जा रहा है 2 से, या फिर एग्जांपल के लिए अगर ले, n अगर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, n अगर डिवाइड हो रहा है या फिर बार बार 2 से या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 से, तो उस केस में जो हमारा जो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, वो निकल के आती है लॉग ऑफ n. इसकी डेरिवेशन आप लोग सर्च कर सकते हो. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली log ऑफ n विच इज बेटर देन द. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो दिस इज ऑफ. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो.